आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द ओल्डर जनरेशन. उन्हें कोई छोटे लोग दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं उनसे यंग, तो उनको लगता है कि ये जेंजी है, इनको टॉर्चर करो. एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग रिपीटेडली. 2 days back I was just having a walk and an elderly guy around 70 to 80 years came to me and he was just asking about my whereabouts, where do I live, and he was from the same society as well, about what's my background and stuff. I was not very willing to talk to him, but then that's okay. He's a chair of that place, and I did not want to take faltu ke pange. So I just gave it to him whatever he wanted. He said he went to US and did job there for a certain period of time. I was like, okay, good for you. And then he mentioned about Jantar Mantar out of nowhere. He said, you know now what happened at Jantar Mantar, what happened at Delhi. You are quite aware about it, right? I was like, yeah, good for them. So he said, good for them. I said, yeah, you know, people want certain kind of rights and they have to fight for it. हम भी लड़ लेते हैं कॉर्पोरेट में कभी रेटिंग के लिए, प्रमोशंस के लिए. If we have not been given our due diligence, we go for it. That is how things are. उस बंदे के इसमें ही लग गए. वो कह रहा है at the cost of what? I said at the cost of your career, your aim, ambitions, basically your mental health, the right of your life, so that you don't have to give up your lives in suicide or in rapes. It is just a sign to show that it's a democratic country and it is not an autocratic country and you have to behave like that. So I said, हाँ आप यूएस से गए तो थे, आप किस चीज़ के लिए गए थे? He said, for my better opportunities. मैंने कहा ये बच्चे भी तो वही कर रहे हैं, किसी के पास नहीं होंगे पैसे माँ बाप के पास यूएस से जाने के, तो ये बच्चे अपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो लड़ रहे हैं, ये क्या अलग लड़ रहे हैं? He is like, he went haywire and he went just out of the box and he's like, you support CJP, you support CJP. I'm like, see, I am not a leftist or a rightist. I don't have a political view over it. Even if I have it, I wasn't going to express it to him. He's like, he just went crazy. And I shut it down to him कि अगर आप प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं तो ये डिस्कशन मैं पार्लियामेंट में करूँ आपके साथ, है ना? And then we can discuss it at that heated argument, at that level, at that place. Abhi, you are spoiling your morning and you are spoiling my morning, so what's the logic of it all? So I don't know what has gone wrong altogether. Why the older generation, millennials and up, are just hating people fighting for their own rights, their vision. It is their youth, it is their country, it is their future and they are supposed to fight for it. आप और मैं भी तो लड़ते हैं. प्याज टमाटर हमें कम सस्ते में चाहिए, बराबर दाम नहीं लगा रहे, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हुई है. The other day I was having this discussion with a friend who was 10 years older to me, and then he said, you are a cockroach. I'm like, sorry, what? First of all, men don't get to talk to a woman like that, but he did cross a boundary and he's like, you are just like a cockroach, you are the cockroach. I'm like, we are doing absolutely no harm to you. Basically, we or me or you or us, no harm to anybody else. आपने कुछ सोच ले लिया है और आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं यंगर जनरेशन पे कि तुम तो साला कॉकरोच ही हो एंड वी आर गोइंग टू सक द ब्लड आउट ऑफ यू. इज लाइक, वेयर इज इट गोइंग? आते जाते हर इंसान ये पंगे ले रहा है. सभी को लग रहा है, सारे ओल्डर जनरेशन वालों को, कि हाँ इसको दबोचो और पकड़ो. स्पेसिफिकली इफ यू आर अ फीमेल, स्पेशली इफ यू आर यंग. आई डोंट नो हाउ इट इज हिटिंग द ईगोज. सो बेसिकली मे बी यू वांटेड टू डू सम प्रोटेस्ट इन योर ओन टाइम, तो जो आप नहीं उखाड़ पाए वो कोई और उखाड़ पाया है. आपको इस चीज से प्रॉब्लम है. इश्यू क्या है यार? मतलब आप लड़ लो अपने राइट के लिए, तब तक सब सही है. हम आपसे अपने राइट के लिए नहीं लड़ सकते हैं. दैट इज नॉट अलाउड. एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑन हाउ पीपल ट्रीट अ मेल एंड अ फीमेल. एंड फीमेल इज नॉट सपोज टू से एनीथिंग, ऑल द गालीज एंड स्टफ. आई मीन, आप जबान पे भी पेट्रियार्की लिख दीजिए ना. बच्चियाँ जब पैदा होती है वुमेन, तो वो टंग पे टैटू करवा दीजिए पेट्रियार्की. तो वुमेन आर सपोज टू बिहेव इन अ सर्टेन वे इन पेट्रियार्की. और सारा धर्म कर्म और सारी इज्जत इन्हीं पे टिकी हुई है आपके पूरे समाज की. तो ये औरतें बिगड़ गई, ये औरतें खुल गई, ये औरतों ने ऐसी गालियां दे दी मर्दों जैसी, तो आप तो डूब ही गए सारे के सारे, पूरे ओल्डर जनरेशन. आई मीन, what? Like, there has to be some base and some logic to your concepts. We know you think of yourself and Rajas and other people as frontliners. तो जैसे गैंग वॉस कैसे होता है? एक रिसोर्स होता है, एरिया होता है, जैसे हफ्ता लेना पड़ता है. तो देर इज़ वन गैंग, देर इज़ अदर गैंग. तो वो एक गैंग का थोड़ा लेवल ज़्यादा हो गया तो दूसरे गैंग को लड़ना पड़ता है ना, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए. एंड देन ही वेंट हे वायर, ही सिंग, डू यू थिंक मोदी इज़ अ गुंडा? डू यू थिंक ही इज़ अ गैंग मेंबर? ही इज़ अ गुंडा? आई एम लाइक, I have absolutely no opinion about the Prime Minister. I am not a leftist, I'm not a rightist, I'm not a communist, I'm not a socialist, I'm not a Marxist. I am doing nothing at all standing with you here and fighting with you on the road. आप बिना कारण दबोचने आ रहे हैं. आपको कोई जवान इंसान दिख गया और वो लेडी वर्किंग है और वो लेडी मुंह खोलती है, तो आप ऐसे दबोचने आ रहे हो भाई. मतलब ये क्या हो रहा है? लाइक ऐसा ये लोग डायरेक्टली आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ इंटीग्रिटी डायरेक्टली नहीं लेते हैं, ये अंकल आंटी बन के लेते हैं.
बेटा, है ना, इन द डिस्गाइज ऑफ पेरेंटहुड, ऑल इन द डिस्गाइज ऑफ गॉड, ऑल इन द डिस्गाइज ऑफ रिलीजन, ऑल इन द डिस्गाइज ऑफ रिस्पेक्ट। सो आप ये सारे चीजें यूज करके हमसे हमारी इज्जत छीन, इसमें भी जज मुझे बोलेगा कि इतने में तुम्हारी इज्जत चलेगी, किसी ने जोर से बात कर दिया तो तुम्हारी इज्जत चलेगी। भाई अगर मैं जोर से उससे बात करूँ ना तो सब लोगों को लेके आ जाएगा झुंड में। सो दिस इज इंटिमिडेटिंग यूथ ऑफ द नेशन बाय यूजिंग एल्डरली रिस्पेक्ट, दैट इज ऑल व्हाट इट इज।